Good morning, children. Welcome to the class. We already completed the civil disobedience movement. Now, we are going to talk about what was the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. So, as all of you know that the non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi for non-cooperation to the British, right? So, this movement only talks about non-cooperation. Okay. So all Indians did not cooperated with British in the administration, right? But in civil disobedience movement, the people were neither cooperating nor obeying law made by British. Then second difference was Muslim participation was very high because of Khilafat issue in non-cooperation movement, while at the same time Muslim participation was very low in civil disobedience movement, right? Then it is organized in only one phase, while the civil disobedience movement was organized in two phases, right? The fourth difference, movement was aimed at dominion status. What was the demand of the people for Mahatma Gandhi? The people wanted dominion status, right? That means in the parliament, they want more numbers of Indians. But in civil disobedience movement, the objective was attain Purn Swaraj. That means full independence they wanted. So these were the difference. You will write all these difference when questions come like this. The next topic in this chapter is the sense of collective belongings. As you already read about it in nationalism in Europe, that how people became one for the nation, right? So to get independence in India, unity was very necessary, right? So nationalism spreads only when people believe that they belongs from same nation, right or not? All the people, whoever is living, ठीक है, all the social groups, ठीक है, ये सभी लोग जब तक ये मानना न शुरू कर दे कि हम सभी लोग एक हैं, राइट, तब तक हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो इफेक्टिव नहीं हो सकता था, राइट। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसको लाने के लिए लीडर ने काफी ज्यादा प्रयास किए, राइट। दे ट्राइड to unite the people, right? So how this collective belonging came in India? There was various ways, right, through which this collective belonging came in India. The first way was the experience of united struggle. As all of you know that the people of India started struggling against British. They started um, they started movement against British, right? And all the people participated in it. ठीक है, तो जब सब लोग मिलके पार्टिसिपेट करते थे तो सब लोग एक तरह से कह सकते हो कि सब लोग एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि यस वी आर टुगेदर, ठीक है। तो सब लोगों को इस ये बात लग रहा था कि वी आर बिलोंग फ्रॉम वन नेशन, राइट। Second is history, fiction, folklore, song, popular print, symbols. All these played a very important role for making nationalism in India as well as for uniting the people of India. Now, let me discuss one by one. What is history and fiction? The people were very much aware at the time regarding the history of India, right? इंडिया की क्या हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया किस तरह से पहले के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कई सारे महान लीडर आए थे, जैसे अशोका, अशोका के बारे में आपने सुना है। देन वी हैड चंद्रगुप्त मौर्य,
राइट। सो ये सारे जो थे, दीज वर द वेरी गुड लीडर, राइट। एक बहुत ही अच्छा किंग था, राइट, जो अशोका थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, राइट। ये अच्छे अच्छे जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आए हुए किंग को हरा दे, इतना इनके पास पावर हुआ करता था, राइट। तो लोग जो है इनकी कहानी याद करा किया करते थे, जैसे झांसी की रानी, राइट। तो इनकी कहानी याद करके अपने आप में प्राउड फील करते थे, राइट। ठीक है। इसके बाद फोकलोर, लोग लोग कई सारा फोकलोर गाया करते थे, ठीक है। सॉन्ग गाया करते थे, गांव गांव जाके घूमते थे, लोगों को अवेयर किया करते थे। कई सारे लीडर तो मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है सभी गांव वाले को इकट्ठा करने के लिए थाली बजाया करते थे, बर्तन को बजाया करते थे, लोगों को इकट्ठा किया करते थे और कहानियां सुनाया करते थे अपने पास्ट की, कि किस तरह हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें यू कैन से डट के रहना सिखाया, या फिर हमें काफी अच्छी, यू कैन से हमारा जो पास्ट है वो काफी ज्यादा ग्लोरियस रहा है। इन सारी बातों की कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। उसके बाद कई सारे अखबार में प्रिंट्स निकाले जाते थे। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो है अलग अलग तरह के फोटोज निकाले जाते थे। आपको याद होगा कि एक फोटोज था जिसमें कि लॉर्ड काली, है ना, गॉडेस काली, उसके गले में ब्रिटिश के कई सारे ऑफिसर के सर का माला लगा हुआ था, राइट और नॉट। तो इस तरह के प्रिंट्स निकाले जाते थे सो दैट लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, कॉमननेस की भावना है, ठीक है, और उनको लगे कि हाँ हम अंग्रेज को भगा सकते हैं यहाँ से, राइट। कई सारे सिंबल्स यूज किए जाते थे, राइट और नॉट, ठीक है। सो इन सारी चीजों की वजह से लोगों के बीच कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के सेंस आए, राइट। कई सारे नेशनलाइज सिंबल, ठीक है, फिगर, इमेज, ठीक है, इनको बनाए जाते थे। जैसे भारत माता का फोटो बनाया जाता था, ठीक है, भारत माता। तो नेशन को एक पर्सनलिफिकेशन किया गया था, ठीक है। जिस तरह से आपने नेशनलिज्म यूरोप में देखा था कि अलग अलग कंट्री को एक फीमेल का रूप दिया जाता था, उसी तरह इंडिया में भी क्या किया गया था, फिगर्स बनाए गए थे नेशन से रिलेटेड, राइट, ठीक है, ताकि लोग जो है नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, ठीक है, विजुअलाइज कर सके, राइट। तो ये सारी बातें हो रही थी। आई विल शो यू कि किस तरह से भारत माता का फोटो बनाया जाता था उस समय, राइट। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट थे वो जो है फोक टेल्स, जो पहले की कहानियां होती थी जो लोगों को इंस्पायर कर सके, ऐसे कहानियां को रिकॉर्ड करते थे, राइट, बुक में लिखते थे, पब्लिश करते थे। और जो लीडर्स थे वो गांव गांव जाके ये फोक टेल्स गाते थे, राइट, ठीक है, अलग अलग विलेज में जाके उनको सुनाते थे, ठीक है। ये फोक टेल्स किससे रिलेटेड होता था, जो पहले के लीजेंड्स होते थे, अलग अलग जो लोकल लीजेंड्स होते थे, गांव के आसपास के कई सारे कहानियां होती थी जिसमें कि बहादुरी के किस्से होते थे कि किस तरह कितना बहादुर था वो, राइट। इसके अलावा जो हमारे कंट्री में ट्राई कलर भी फहराया गया था, ठीक है। जो सबसे पहला ट्राई कलर फहराया गया था वो रेड, ग्रीन एंड येलो था, राइट, ठीक है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट 1908 में हुआ था। इसके अलावा लोगों के अंदर प्राइड की भावना को डालने के लिए इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको लोगों को बताया जाता था, ठीक है। देखो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों का मानना था कि इंडियंस आर बैकवर्ड, ठीक है, इंडियंस क्या है, बैकवर्ड है, दे आर प्रिमिटिव, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके, अपने आप को रूल कर सके, राइट। दैट्स व्हाई ब्रिटिश क्या बोलते थे कि वी आर हियर टू सिविलाइज यू, वी आर हियर टू गवर्न यू एंड वी विल मेक योर फ्यूचर बेटर, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में इंडियंस
जो थे, जो इंडियन लीडर्स थे, वो ये बोलते थे कि हमारा जो रिच है, हमारा जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा रिच है, हम इस अंग्रेज के बिना भी अपने कंट्री को चला सकते हैं एंड वी विल डू बेटर, राइट, कंपेयर टू ब्रिटिश। ठीक है, इस तरह से इंडियन हिस्ट्री को भी उदाहरण दिया करते थे। मैंने पहले ही कहा आपको कि किस तरह से वो बड़े बड़े जो लीडर्स हुआ करते थे, हमारे जो किंग थे, जैसे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इन लोगों के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, राइट। बुद्ध के बारे में बोला करते थे कि बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा का जन्म यहाँ पर हुआ है ना। उसके बाद हमारा जो डिफरेंट, यू कैन से कि मिडिवल पीरियड में भी अकबर, राइट, अकबर ने काफी अच्छा काम किया था, तो इन लोगों की कहानियां सुनाया करते थे लोगों को। ठीक है, और कहा करते थे कि जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने जब हमारे कंट्री को चलाया इतना अच्छे से, तो क्या हम नहीं चला सकते। सो दिस टाइप ऑफ यू कैन से leaders were adopting this type of strategy to unite the people of India, right? So look at here, this is some of the flag. देखो यहाँ पर इंडिया में फ्लैग कैसे कैसे बनते थे 1906 में। इस पिक्चर में देखो, ये जो 8 लोटस है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश प्रोविंस, 8 ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ इंडिया। This is the moon representing Muslims, this is the sun representing Hindu, right? So 1906 में इसको बनाया गया था, रेड, येलो, ग्रीन, है ना। सो इसी तरह कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, नेक्स्ट इस तरह का फ्लैग आया, इस तरह का फ्लैग आया, राइट। ये महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था 1921 में। यू कैन सी हियर, यहाँ पर बीच में चरखा लगाया गया है। चरखा क्यों लगाया गया है? क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि अपना कपड़ा खुद से बनाना है, ठीक है, दूसरे कंट्री से नहीं मंगाना है। उस समय क्या हो रही थी, जो इंडिया में क्लॉथ का जो इंपोर्ट था वो दूसरे कंट्री से ज्यादा हो रहा था, ब्रिटेन से ज्यादा हो रहा था। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि लोग चरखा खुद से चलाए और कपड़े खुद से बनाए, राइट। सो धीरे धीरे देखो 1931 में इस तरह का बना। लेकिन चरखा होने से प्रॉब्लम ये था कि ये दूसरी तरफ से उल्टा दिखता था हमारा फ्लैग, राइट। सामने से सीधा दिखता था, लेकिन फ्लैग को दूसरी तरफ से देखने से ये उल्टा दिखता था। दैट्स व्हाई 1947 में सिर्फ अशोक चक्र को डाला गया इन द नेशनल फ्लैग। यहाँ पर देखो, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। स्प्रिंट में दिखाया गया किस तरह से नेहरू, ठीक है, भारत माता के इमेज को अपने हार्ट के पास रखा है इन्होंने, क्लोज टू हिज हार्ट, राइट। तो इस तरह का प्रिंट निकाला जाता था जिससे कि जो नेशनलिज्म की आइडिया है वो पॉपुलराइज हो सके, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट यू कैन सी हियर, दिस इज द इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870, ठीक है। ये एक बुक के कवर पे लगाया गया था, ठीक है। इसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये जो फिगर दिखाया, आप देखो यहाँ पर, दिस इज द इमेज ऑफ भारत माता। इनके एक हाथ में क्लॉथ है, राइट, ठीक है, और एक हाथ में जो है क्रॉप्स है ना। एक हाथ में नॉलेज के लिए जो बुक है, राइट, और एक हाथ में वर्शिप के लिए, राइट। तो you can see here the image is a female figure, right? So you always know that कि जो फिगर, नेशन का जो फिगर बनाया जाता था कहीं भी दूसरे कंट्री में भी, वो फीमेल का ही बनाया जाता था, राइट। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक हाइम भी लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम, राइट, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, राइट। ये वंदे मातरम इन्होंने लिखा था आनंद मठ, एक नॉवेल में लिखा था, जिसको कि स्वदेशी मूवमेंट में काफी गाया भी गया था, राइट। सो लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू से दैट मुस्लिम पीपल, जो मुस्लिम कम्युनिटी थे हमारे कंट्री में, वो भी इस पिक्चर को मानेंगे?
नहीं. So there was certain limitations, ठीक है, in this picture because ये जो तो है something related with the Hindu religion, right or not? तो मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात का भी हमेशा से ये रहा था कि जो भारत माता का पिक्चर है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, राइट और नॉट? सो वी शुड क्रिएट such type of symbols, such type of image of Bharat that Muslim and Hindu people can unite together, right? लेकिन इस पिक्चर को देख के ऐसा आपको लग रहा है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये जो है हिंदू रिलीजन की कोई गॉडेस है, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा, यू कैन लुक एट हियर, अवनींद्रनाथ टैगोर. उन्होंने भी एक पेंटिंग किया था, बहुत ही फेमस पेंटिंग है भारत माता का, ठीक है. इस पेंटिंग में भी जो भारत माता है वो एस्थेटिक है, काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, राइट? देखने से लग रहा है, यू कैन लुक एट हियर, इनके साथ लायन भी है, ठीक है, एलिफेंट भी है. दिस इज द सिंबल ऑफ मोनार्की, राइट? पावर, दिस इज द सिंबल ऑफ पावर. लायन इज पावर ऑफ सिंबल ऑफ पावर. हाथ में फ्लैग है ना, ठीक है. और पीछे कई सारे गॉडेस भी हैं, राइट? ओके. सो यहाँ पर एलिफेंट एंड लायन जो है बोथ आर द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, राइट? ओके. देन हियर सी इज shown with a त्रिशूल standing beside. त्रिशूल, you know, it is a weapon to fight against, right? सो इस तरह के पिक्चर्स बनाए जाते थे. नेक्स्ट है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट. देखो, जैसे ही ये 1932, राइट, जो फर्स्ट फेज था हमारा, सॉरी 1931 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सेकेंड फेज ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो है वीक मूवमेंट था, राइट? फिर 1942 का समय आया. 1942 उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, राइट? सो चूंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, राइट और नॉट? और पैसे जो है काफी ज्यादा खर्च हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में. इंडिया का भी हाल ऐसा ही था. तो गांधी जी ने लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि अब जो है बहुत हो गया, अब डू और डाई. ये आपने नारा सुना होगा, महात्मा गांधी ने दिया था कि अब या तो करो या तो मरो. और उन्होंने अंग्रेजों को बोला था कि कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, राइट? अंग्रेजों भारत छोड़ो. ये 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में ये नारा लगाया था, राइट? ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो 14 जुलाई 1942 को वार्धा मीटिंग में डिमांड किया गया था, राइट? ठीक है. सो जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, राइट? सो सिंपल सा बात है, क्विट इंडिया का मतलब ही होता है कि अंग्रेज को इंडिया से क्विट करना है और पावर जो है, जो ब्रिटिश के पास जो पावर है वो इंडियंस को मिल जाने चाहिए, राइट? ओके. On 8th August 1942 in Bombay, All India Congress Committee endorsed the resolution which called for non-violent mass struggle. ठीक है, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट भी था ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है. और थ्रू आउट द कंट्री ये मूवमेंट चला था, ठीक है. एंड डू एंड डाई स्पीच के बारे में मैंने बताया, महात्मा गांधी इसमें उन्होंने कहा था डू एंड डाई स्पीच कि अगर आप अब करो, या तो कुछ करो या तो मर जाओ, ऐसा इन्होंने कहा था. द पीपल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व हड़ताल्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, ये सारी चीजें हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में. लोग नेशनल सॉन्ग्स गा रहे थे, स्लोगन्स बोल रहे थे, राइट? सो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट? और कई सारे लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था. जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उसमें जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, है ना, राम मनोहर लोहिया, ठीक है. कई सारे वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे मटंगिनी
हाजरा इन बंगाल, ठीक है, कनकलता बरुआ इन असम, रमा देवी इन उड़ीसा, ठीक है। सो ब्रिटिश जो है काफी ज्यादा इस क्विट इंडिया मूवमेंट से डर गए, राइट। और कुछ ही साल में, 3-4 साल में, 2-3 साल में ये मान गए कि हाँ इंडिया को, हमें इंडिया का जो पावर है वो हम इंडियंस के हाथ में देंगे, राइट। और फाइनली 1947 में इंडिया क्या हुआ, आजाद हो गया, राइट। सो दिस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट. I think we completed this chapter. Thank you. Have a nice day. You have to prepare the question and answer of this chapter. I will give you the important question and answer. Wait for that. Okay, bye.